یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے۔ دور کسی جنگل میں 3 دوست ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور وہ تینوں ایک دوسرے سے مشورہ صلاح کر اپنا کام انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کے جنگل میں کھانے پینے کی کمی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کا جنگل میں سوکھا پڑ چکا تھا۔ ایسے ہی تمام پکشی بہت زیادہ پریشان تھے سوکھے کے موسم کو لے کر۔ ایسے ہی کبوتر کہتا ہے، ارے رانو، کیا کہتی ہو؟ ہمیں کسی دوسرے جنگل میں پرواز کر جانا چاہیے۔ ارے ٹھیک کہہ رہے ہو تم کبوتر، اس مرنے سے تو اچھا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ ارے کالو بھائی، ہم کس دشا میں چلیں؟ جس دشا میں ہمیں بھوجن ملے ہم اس دشا میں جائیں گے۔ کیوں کبوتر، کیا کہتی ہو؟ تمہیں کوئی پتہ ہے؟ نہیں رانو، مجھے تو کچھ نہیں پتا کون سی دشا میں بھوجن ملے گا۔ کالو کو پتا ہوگا کیونکہ یہ تو گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ ہاں مجھے دوستوں پتا ہے کس دشا میں بھوجن ملے گا۔ ہمیں اتری دشا کی طرف جانا چاہیے۔ اتری دشا کی طرف کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، وہاں کے واسی پکشی بہت ہی موٹے تازے اور بہت ہی کھلے کھلے ہیں۔ ہمیں اس دشا کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ کیا کہتی ہو رانو؟ ارے کبھی بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس دشا میں چلتے ہیں، اتری دشا کی طرف۔ ایسے ہی کوے کی صلاح دونوں دوست لے لیتے ہیں کیونکہ کوا بھی ان کا اچھا دوست تھا۔ اور کبوتر کہتے ہیں، ارے کوے یار، تمہیں تو سب راستہ پتا ہے نا کہاں جانا ہے؟ ہاں کبوتر، مجھے تو پتا ہے وہ دوست، وہ جنگل بہت خوبصورت ہے، ہمیں وہاں چلنا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی تینوں دوست پرواز کرتے ہیں اور اونچی اڑان بھرتے ہیں اور وہ تو رات ہونے سے پہلے خوب اڑتے ہیں اور دوسرے اتری دشا کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو صبح سے شام ہو جاتی ہے اور وہ تینوں ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ ارے کبھی بھائی، ابھی تو رات ہو گئی ہے، ہم نہیں اڑ سکتے۔ ہاں رانو، ہم نہیں اڑ سکتے۔ کیوں، کیا کہتے ہو کبوتر؟ ہاں کوے، ہم اس رات میں نہیں اڑ سکتے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پیڑ پر بیٹھتے ہیں۔ ارے کبوتر بھائی، ہم تینوں ایسا کرتے ہیں کہ باری باری پہرا دیتے ہیں، ایک دفعہ سوئے، ایک دفعہ سوئے۔ ارے ٹھیک کہہ رہی ہو رانو بہن آپ۔ ارے آپ دونوں سو جائیں اور میں پہرا دیتی ہوں، اور جب آدھی رات ہوگی تو آپ پہرا دے لینا اور میں سو جاؤں گی، اور جب آخری پہر رہ جائے گا پھر کالو بھائی پہرا دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے رانو جیوا، جیسا تم کہتی ہو ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابھی میں اور کبوتر سو جاتے ہیں اور تم پہرے داری کرو۔ یہ اچھی بات ہے رانو کہ ہمارے آس پاس کوئی خطرناک پکشی نہ آ جائے، اس جنگل میں چیلیں بھی رہتی ہیں۔ ارے ٹھیک ہے کوے بھائی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پہرا دیتی ہوں، آپ دونوں سو جائیں اور پھر کبوتر بھائی آپ پہرا دے لینا۔ ایسے ہی کبوتر اور کالو سو جاتے ہیں اور رانو چڑیا پہرا دیتی ہے۔ رانو چڑیا کبھی اٹھتی کبھی اڑتی اور دور تک دیکھتی کہ کوئی بھی آ تو نہیں رہا۔ ایسے ہی رات کا آدھا پہر گزر جاتا ہے۔ ارے کبوتر بھائی اٹھ جائے، اب میں تھوڑا سا سو لیتی ہوں، آپ پہرا دے لیں۔ ٹھیک ہے رانو، میں اب پہرا دیتا ہوں، تم کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ ایسے ہی رات کے دوسرے پہر میں کبوتر پہرا دیتا ہے اور کالو اور رانو سوئے رہتے ہیں، اور کبوتر بھی رانو کی طرح کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا اور کبھی اڑتا اور دور تک چکر لگاتا کہ کوئی شکاری پکشی تو نہیں۔ ارے کالو آپ اٹھ جاؤ، اب آپ پہرا دے لو، میں سو لوں، رات کا آخری پہر ہے۔ ارے ٹھیک ہے کبوتر یار، میں پہرا دیتا ہوں، تم سو جاؤ۔ ایسے ہی پھر کالو کوا پہرا دیتا ہے اور رات کے آخری پہر میں دوست سیوک الو آتے ہیں اور دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے مہاراج نے بولا ہے
हमें कोई ऐसे दो सेवक चाहिए कि हम उनसे अपना काम करवा सके पूरे राज का। अब हम दो सेवक कहाँ से पकड़ के लाएं? उन्होंने बोला है कि दो बोरियां गंदम की देंगे जो हमारी सेवका करेगा, और दो पक्षियों की जरूरत है। अरे यार, क्यों कहते हो कि सुबह उत्तरी दिशा की तरफ पक्षी है, उधर चलेंगे। कालू ये बात सुन लेता है उन दोनों उल्लुओं की। वाह भाई वाह, जब भी देता है ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के देता है। हो हो। ऐसे ही कालू कौवा उनकी बातें सुनकर उन दो सेवक उल्लुओं के पास जाता है। नमस्ते उल्लुओं, मेरे पास दो पक्षी हैं सेवक, वो मेरे सेवक हैं, मैंने उनको बेचना है महंगे दामों में। अरे ठीक है कौवे, हम तुम्हें दो बोरियां गंदम के दानों की देंगे। ठीक है, ये मेरे दो हैं सेवक पक्षी, मैं इनका उस्ताद हूँ। आप इन दोनों को ले ले और मुझे दो गंदम की बोरियां दे दे, और आप इनको सुबह अपने साथ ले जाना, ये बहुत थके हुए हैं। अरे ठीक है कौवे, मैं तुम्हारी बात से प्रसन्न हुआ हूँ। चलो मैं तुम्हें दो बोरियां गंदम के दाने की देता हूँ, और ये आज से हमारे राजा के सेवक हुए। ठीक है उल्लू भाई, आप मुझे दो बोरियां गंदम के दाने की दे दे। वैसे भी इनको मैंने आगे देना था, फिर आप इन दोनों को रख ले और मुझे मेरे दाम दे दे। फिर एक सेवक उल्लू के साथ कालू कौवा दो बोरियां गंदम के दानों की ले लेता है। अरे भाई उठो, दोनों पक्षियों सेवकों उठो, सुबह हो गई है। ऐसे ही उल्लू की आवाज सुनकर रानू और कबूतर उठ जाते हैं। अरे उल्लू भाई, हमारा दोस्त कालू कौवा कहाँ है? अरे कौन सा दोस्त, वो तो तुम्हारा राजा था, वो तुम दोनों को बेच गया है, हमारे आगे दो गंदम की बोरियां लेकर वो चला गया है, और हमने तुम्हें अपने राजा के लिए खरीद लिया है, उनके महल की झाड़ पोछा करने के लिए। अब तुम दोनों चलो हमारे साथ राजा के महल में। आप राजा के महल में सेवकों का काम करोगे, हमें सेवकों की जरूरत थी। ऐसे ही वो उल्लू रानू और कबूतर को बताता है। अरे ये क्या कह रहे हो उल्लू, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि कालू हमें बेच कर जा सकता है, वो तो हमारा दोस्त है। अरे कबूतर, ज्यादा बातें ना करो, वो तुम्हें हमके आगे बेच कर चला गया, दो गंदम की बोरियां ली है उसने। अगर तुम ना चले तो हमें अपने उल्लू सेवक बुलाने पड़ेंगे, वो तुम्हें लेकर चलेंगे। अरे उल्लू भाई, हम आपके साथ चलते हैं। अरे कबूतर, आप तो समझ गए हैं जो कालू हमारे साथ कर गया, अब हमें इनके साथ जाना ही पड़ेगा। अगर हम ना गए तो ये हमें ज़बरदस्ती अपने साथ ले चलेंगे। ऐसे ही रानो चिड़िया और कबूतर राजा के महल की तरफ उल्लू सेवक के साथ चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो राजा के महल में पहुंच जाते हैं, और रानो चिड़िया और कबूतर राजा के सामने आते हैं। अरे तुम दोनों मेरे सेवक पक्षी हो, आज से मेरे इस महल की तुमने झाड़ू पोछा अच्छे से करना है, और सारा काम तुम दोनों ने करना है। तुम दोनों की ये ड्यूटी है कि तुमने मेरे आने से पहले हर काम कर रखना है, और हर काम ध्यान से और पूरी राजधानी से करना है। ऐसे ही तोता राजा वहाँ से चला जाता है, और रानू राजा के महल के सारे काम करते, दान साफ करते, झाड़ू पोछा और यहाँ तक के बर्तन भी। अरे रानू, ये कालू ने हमारे साथ क्या किया है, इसने दोस्ती का अच्छा हमें सिला दिया। अरे कबूतर भाई, हमें क्या पता था कि वो कालू कौवा ऐसा निकलेगा। ऐसे ही रात हो जाती है और मिठू राजा आते हैं। अरे तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम जैसे सेवक पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। अरे सेवक उल्लू, इनको ज्यादा आँच से भोजन दिया कर, मुझे इन दोनों का काम बहुत पसंद आया है। ऐसे ही फिर मिठू राजा वहाँ से चला जाता है, और कुछ दिन और रातें बीत जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद
मिट्ठू राजा का बेटा दूर जंगल में कहीं खो जाता है और पूरे जंगल में शोर मच जाता है कि मिट्ठू राजा का बेटा कहीं खो गया है। तमाम पक्षी मिट्ठू के बेटे को ढूंढते हैं पर मिट्ठू राजा का छोटा राजा बेटा नहीं मिलता और रानू और कबूतर भी ढूंढते हैं। रानो एक ऊंची उड़ान लेती है और मिट्ठू राजा के बेटे को कांटेदार झाड़ियों में फंसा देखकर उसके पास फौरन जाती है। अरे अरे, ये तो मिट्ठू राजा का बेटा है, ये इन झाड़ियों में कैसे फंस गया मेरा बेटा? आप यहाँ कैसे? आंटी आंटी, इन झाड़ियों से मुझे निकालें, ये झाड़ियाँ मुझे बहुत चुभ रही हैं। फिर रानो बहुत मुश्किल से मिट्ठू के छोटे बेटे को उन झाड़ियों में से निकालती है और फिर रानो चिड़िया मिट्ठू के महल में उसके बेटे को ले जाती है। मिट्ठू दूर से ही रानो को देखकर बहुत खुश होता है। अरे अरे रानो, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। अरे अरे मिट्ठू महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। रानो चिड़िया, आज से तुम मेरी सेवक नहीं मेरी सलाहकार हो। जो भी मैंने सलाह करनी है तुम्हारे मशवरे से करूँगा। एक कुर्सी साथ में तुम्हारी है और एक कबूतर की है और तुम दोनों मेरे आज से सलाहकार हो, तुम मेरे सेवक नहीं रहे। ऐसे ही मिट्ठू तोता रानो और कबूतर को सलाहकार बना देता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा उसी उत्तरी दिशा की तरफ आता है जिसने उसने रानो और कबूतर को बेचा था महंगे दामों में। अरे अरे अजनबी पक्षी, मुझे कुछ भोजन खाने को दे दो। मैं वासी पक्षी परवाज कर रहा हूँ, मेरा भूख के कारण बुरा हाल है, मुझे कुछ दाने दे दो। अरे अरे जी, मैं तो दाने नहीं दे सकता। आप जाए मिट्ठू राजा के पास, वो हर वासी पक्षी को भोजन देते हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको मिट्ठू राजा के महल में ले चलता हूँ। अरे ठीक है अजनबी पक्षी, मुझे ले चले आप। ऐसे ही वो अजनबी पक्षी कालू को अपने पीछे पीछे मिट्ठू के महल में ले जाता है और रानो को देखकर कालू दूसरी दिशा में मुंह घुमा लेता है। कालू को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे कालू भाई, मैंने आपको पहचान लिया है, आप दूसरी दिशा में ना मुंह घुमाएं, आप मेरी तरफ मुंह करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, आपने जो किया सो किया। अरे रानो, तुम इसको जानती हो, ये कौवा कौन है? अरे अरे, हाँ हाँ तोते महाराज, मैं जानती हूँ, ये वही कौवा है जो आपके आगे हमें गंदम के दाने देकर बेच गया था। रानो रानो, मुझे माफ़ कर दो। रानो प्लीज मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा। ऐसे ही कालू माफ़ी मांगता है और कुछ गंदम की पोटली में दाने भरकर रानो कालू को दे देती है। कालू वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो ऊपर वाला उसके साथ कभी बुरा होने नहीं देगा।